Assalamualaikum guys, this is Ali Baqir Khan with another session of Youth Alumni Association. Today we have Sehrish Azhar with us. Sehrish, thank you so much for joining the session today. How are Most you? welcome. I'm all good, most welcome, and I'm so honored to be a part of this session. You have been doing great with the videos. I've been watching them. They are a great source of information, mashallah. Okay, guys, just wanted to introduce Sehrish a bit. I mean, she's already a part of Youth Alumni Association because she used to work as, for a cause, and she was a motivational speaker. So whenever we guys used to go to different institutes, so she was a part of those workshops that we guys have been conducting in past as well. Apart from that, currently she's a social media marketing manager, and she has been working on for a cause that she's running on her own. Apart from that, she's into blogging and a lot of things like motivational speaking. We've used to work together as content writers back in, I think that was 20, I don't remember the year exactly, but that was in 2015. 2015. Yeah, that it has been a while, and that was in Kemu. So that's how I know Sehrish. And Sehrish, if you want to go ahead and tell us about your career journey, just throw some light upon Sehrish. That was, when you were a child, how you started off, क्लास में किस तरह से जाती, क्या पैशन होता था, टीचर्स के एक्सपीरियंस क्या था. We want to know more about your career journey from starting from your school life. Go ahead. Okay. So, Assalamu alaikum, everybody. Firstly, I'll tell you what am I doing exactly doing right now. I'm basically a social media marketer and working for a social welfare school. And that's my profession. And by passion, I am a blogger and a social entrepreneur, and also do motivational speaking occasionally. Currently, I'm a stay-at-home mom and remotely working as a social media marketer. So it's been good. While starting from the start of my journey, you'll make me nostalgic, by the way. मतलब ये काफी दिनों से मैंने नहीं जो है discuss किया किसी से. So it's going to be good See what for it me is as going well. to be. Okay. So basically, I did my O levels from Defense Public School in business subjects, accounts, business. Then I did my A levels from the Lahore Alma, Okay. again in business subjects. So from the start, I was lucky that I was clear in my mind that I had to do something in business administration, and I was not a science student or particularly an arts student. I knew that I have interest in business and marketing and stuff like that. So luckily, I did my O levels and A levels in business. I was not confused. Mostly, I have been watching kids who are a bit confused, and that's all right. कि उनको पता नहीं होता कि वो sciences में जाएं, arts में जाएं. इतने सारे अब तो बहुत ज़्यादा आ गए हैं occupations, professions. So sometimes students are confused. But I was lucky enough that I knew that I had to do something in business. So did O levels and A levels in business subjects, and then ended up at LSE again at for BBA in marketing and media. Okay. So I did that 4-year program in marketing. Marketing was my major and media was my minors. So did that and thoroughly enjoyed it because it was all business administration. It had all the subjects I loved, with marketing and advertising, and a bit of film studies and Film video studies. production. I Yes, because remember there media was a was there. conversation you were doing in KMU back in those days. That was regarding films as well. So yeah, Yes. I can So relate to that. as media was my minors, so film studies and video productions courses like these were also there, which I Interesting really subjects, enjoyed. which we normally don't get to hear about. So it's good to hear from a person Yes. like you. Yeah, go ahead and carry on. Ah. Yeah. So communication skills, and then there was I do not remember the name, but in which we wrote a book. So everybody wrote a book, Uh-huh. and yes. So मतलब उस तरह के बहुत मजे के सब्जेक्ट्स भी होते थे, और जो मेरे कोर मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के सब्जेक्ट्स थे वो भी होते थे. Uh-huh. और I was always a theoretical kind of person के मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पे मैं लिखना मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जो नंबर्स वाले सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स और स्टैट्स आई सक्ड इट. मतलब मुझे जो वो वाले कोर्सेज है ना, वो मेरे लिए 2-3, आई थिंक मेरे 42 कोर्सेज थे,
और उसमें से मेरे 2 C's हैं टोटल 42 में से। अच्छा। तो वो मेरे मैथ्स के सब्जेक्ट्स में हैं दोनों। अच्छा। तो मुझे जो है ना, वो बहुत मुश्किल से मैं पास करती थी, स्टैट, मैथ, इवन इकोनॉमिक्स। आई मतलब फाइंड मैथ्स इकोनॉमिक्स नहीं एट वेरी। पसंद थी जी, बस नहीं करनी यार, क्या हाँ, अलजेब्रा का क्या नंबर्स नहीं फायदा पसंद, है जब वो। नंबर्स आ जाते हैं ना, वहां मेरा दिमाग हाँ, थोड़ा चलना बंद हो हो जाता जाता है, है, काइंड ऑफ। दैट्स फाइन, ओके। हाँ, सो मुझसे आप लिखवा लो, कैंपेन्स डिजाइन करवा लो, उस तरह की चीजें। और वो मुझे शुरू से पसंद था। तो फिर एलएससी में भी बहुत एंजॉय किया, 4 साल मजे के सब्जेक्ट्स थे, थोड़े थोड़े बीच में आ जाते थे ड्राई वाले, वो फिर हम कर लेते थे कुछ ना कुछ उसका। अच्छा। सो एलएससी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह डिड माय बीबीए ऑनर्स विद डीन्स ऑनर्स लिस्ट, सिल्वर मेडल लिया मैंने, क्योंकि माशाल्लाह। एंजॉय बहुत किया, दिल से पढ़ रही थी। तो उसके बाद फिर मेन तो यही था कि कुछ मार्केटिंग और इस तरह से, डिजिटल मार्केटिंग उस वक्त नया नया आया था, इफ यू रिमेम्बर अच्छा, आल्सो, Serish, one thing टू द। I just want to actually add on. I mean, it's really interesting thing that's going on. One thing that I just want to ask is कि school life में आप क्या बनना चाहती थी personally at that time? वो तो पता चल गया आप आ गई हैं LSC, फिर तो एक जर्नी बन गई ना, क्रिएट हो गई बिजनेस स्टडी। बट व्हाट अबाउट बिफोर LSC? कभी तो कोई थॉट आकर हुई होगी ना that okay, I want to become, something different, like a fashion designer maybe, or अच्छा, उस वक्त, अच्छा, आई बी ऑनेस्ट अबाउट इट, क्योंकि आजकल भी बच्चों का बहुत ज्यादा ऐसे होता है, कोई 6-7 ग्रेड में जब मैं थी ना, तो मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। hmm, क्योंकि मैंने देखा था, तो मुझे इंस्पायर कुछ लोग करते थे, और ये डॉक्टर हैं, इनकी तो बड़ी टोर होती है, और ये होती है, और एक सोशल वेलफेयर का काम है, उसमें भी मेरा इंटरेस्ट है। hmm, तो वो करना चाहती थी। लेकिन फिर मैंने बहुत क्लोजली अपनी फैमिली में कुछ डॉक्टर, तो उनका ना लाइफ बहुत ऐसे, मतलब कभी भी रात के 2 बजे उन्हें फोन आ गया, ये हो गया, hmm. वो हो गया, उठ के चले गए। वो कोई 8th ग्रेड में आके ना, मेरा वो उस बारे में पैशन जरा डाउन हो गया। मैंने कहा ये बड़ी मुश्किल लाइफ है भाई, ये तो पढ़ना भी इतना पड़ेगा, और कोई पर्सनल स्पेस ही नहीं है, आपको कुछ भी बुला लेंगे, ये कर लेंगे। कभी भी बुला सकते हैं, बिल्कुल, हाँ, आई और फिर एग्री। साइंस सब्जेक्ट्स भी मुझे इतने अट्रैक्ट नहीं करते थे, केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह, क्योंकि मैंने मिक्स के, जो 7th ग्रेड में होती है ना, टोटल साइंस की किताब जिसमें तीनों सब्जेक्ट्स होते हैं, वो मैंने आई थिंक लास्ट पढ़ी थी। आई सी। तो उसमें मुझे केमिस्ट्री फिजिक्स मेरे सर से गुजर जाता था, तो वो मेरा जो डॉक्टर बनने का जो था ना, एक अंदर पैशन ख्वाब और कह एक लीजिए। एम था, बस वो आपने कहा यार अभी ठीक है, बस फिलहाल मिस करा रहे हैं। अभी अभी मैंने कहा अच्छा, नहीं, ये अब तो अब मुझसे नहीं स्टोरी ये है होगा। कि जी ओ लेवल्स में आप चाहती थी, प्री ओ लेवल्स में मोस्टली, कि जी प्री आई ओ वांट टू लेवल्स में बिकम। डॉक्टर बनना चाहती थी। अब आप ए लेवल्स में लेकिन आ फिर गई, ए लेवल्स में क्या हुआ? उसके बाद मैंने कहा नहीं, ये तो मेरा गेम नहीं है, मेरी गेम मुझे लगता है कि कुछ बिजनेस स्टडीज टाइप है। ये ए लेवल्स और में यू कुछ यू मैंने, गॉट टू नो अबाउट इट कि जी बिजनेस स्टडीज हाँ, वुड और बी कुछ ये माय। भी था कि मेरे बहन भाइयों ने भी, बड़ों ने भी बिजनेस में ही किया था सब कुछ, तो मुझे वो अच्छा। भी इन्फ्लुएंस था। हाँ, मेरे माय फादर इज आल्सो अ मार्केटिंग पर्सन, तो आई वो सी। भी एक इन्फ्लुएंस था। तो फिर मुझे वो डॉक्टर वाला पीछे रह गया, और बिजनेस और मार्केटिंग और ये वाला ओ ए चलें जी, लेवल्स में अब आपकी बन एलएससी की गया। जर्नी स्टार्ट हो गई, यू वर हाँ, टेलिंग फिर अबाउट द एलएलसी फिल्म इंडस्ट्री में, कोर्सेज, जो भी कम्युनिकेशन के कोर्सेज थे। हाँ, या गो एलएलसी में अहेड। भी वही, फिर आई एंडेड अप इन बिजनेस, तो वो भी फिर मैंने थॉरली एंजॉय किया, क्योंकि फोकस मेरा था कि हम्म। इसी तरफ आना है। ठीक है। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 4 इयर्स वेंट रियली वेल, क्योंकि आप जब अपने इंटरेस्ट का कुछ पढ़ रहे होते हो और अपनी मर्जी से पढ़ रहे होते हो, तो फिर यू डू इट डिफरेंटली। या वो जो अंडर प्रेशर आके, और वो जो दूसरों की सजेशंस पे करते हो, दैट इज टोटली। तो वो मैंने बहुत ज्यादा रियलाइज किया जब मैंने अपनी मर्जी से मैं गई थी, और मैंने अपने उससे कह के अपने माँ बाप को एक गारंटी दे के गई थी कि मैं अच्छा पढ़ूंगी, आप मुझे बस जाने दें एक बार। तो वो फिर इट हैपेंड, Mashallah. अल्हम्दुलिल्लाह। And your parents are very तो supportive, as far as I know, because I've met your father as हाँ, well. I still अल्हम्दुलिल्लाह, remember. अल्हम्दुलिल्लाह। I mean, he has always given confidence कि जी जाएं ये करें. So that's a good thing. बिल्कुल बिल्कुल Yeah. बिल्कुल। सो आफ्टर एलएसी मेन तो वही था कि कुछ इसी तरह से करना है। डिजिटल मार्केटिंग उस वक्त जो है, मैं ये तो नहीं कह सकती नई आई थी बैक इन 2014, लेकिन पाकिस्तान में कह सकते हैं कि ज्यादा जरा सरेआम आई इनिशिएट थी। हो रही थी थोड़ी सी आहिस्ता हाँ, आहिस्ता, हाँ। इनिशिएटिव। आई स्टिल बिल्कुल रिमेम्बर जिस तरह ई कॉमर्स में जब हम लोग भी स्टार्ट किया था केमू में, एट दैट टाइम पीपल वर जस्ट गेटिंग यूज्ड टू द फैक्ट कि जी ऑनलाइन शॉपिंग क्या होती है। अब तो हर बिल्कुल। तीसरा पेज जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग पे बन हाँ, गया है। बिल्कुल बिल्कुल, उस वक्त मुझे समझ आती थी कि अच्छा ये है, वो है। और ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपर्स भी बहुत ही, दे वर वेरी फ्यू या जिनको ये देवर। नॉलेज थी कि अच्छा जी ऑनलाइन क्या करना है। हाँ। अब तो हर चीज ही, डबल रोटी से लेके जूते तक, हर चीज ऑनलाइन जो मंगवा
ऐसे ही हो रहा है जी। तो एग्री। फिर ये फोकस था, लेकिन वही बात है, एज फ्रेश ग्रेजुएट मैंने भी एक्सपेरिमेंट तो किया। आई टॉट इन अ स्कूल एज वेल, और सारा कुछ कि अच्छा चलो, आई वांट टू ट्राई माय हैंड्स ऑन डिफरेंट स्टफ। सो वो भी किया, प्राइमरी सेक्शन के बच्चों को पढ़ाया इन अ स्कूल। बट देन आई आफ्टर, मतलब थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करके इनिशियल अपनी जॉब्स में 2-3, फिर मैंने फिगर आउट किया कि आई वांट टू डू समथिंग इन मार्केटिंग फॉर श्योर। हम्म। सो डिड अ जॉब इन डिजिटल मार्केटिंग। एक कंपनी एक्सपोनेंटो के नाम से थी, उनके उसमें काम करती थी, अ बिट ऑफ कंटेंट राइटिंग इन मार्केटिंग। देन केमू में भी काम किया एंड कंटेंट राइटिंग एज वेल। हम्म। और फिर यही कुछ करते करते इन 2017 आई रियलाइज कि मैं कुछ ना कुछ ब्लॉगिंग में भी और कुछ सोशल एंटरप्राइज से रिलेटेड भी करना चाहती अच्छा, हूँ अब अदर ये दिन। सब कैसे आए? देखें, आप एक 9 to 5 जॉब कर रही हैं, एक बहुत प्रेशर होता है, बंदा साइड हसल भी कर रही हैं, फिर ब्लॉगिंग भी है, फिर मोटिवेशनल स्पीकिंग भी है, फिर आप यूथ अलमनाई एसोसिएशन के साथ भी रियली एक्टिव। आई स्टिल रिमेंबर दोस डेज एंड यू लाइक, यस आई विल जॉइन फॉर श्योर। सो हाउ वर यू मैनेजिंग योर रूटीन एट दैट टाइम? आई मीन, Serish now and Serish then is totally different from what I know Serish, बिल्कुल। अब तो आपके पास हाँ, 10 मिनट भी नहीं है। So why does it happen? मतलब थोड़ा सा इस पे भी बताएं कि क्या है, what's the difference? बस वो वक्त ही और था। अभी भी मैं सोचती हूँ, मैं कहती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि फेजेस होते हैं, वन बाय ईच फेज। हर Yeah. फेज का अपना एक चार्म है। Hmm. उस वक्त ये था कि ऑब्वियसली सिंगल थी, Hmm. करियर एक्सप्लोर करी थी, फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था, कोई वो नहीं था कि भाई ये करना है, या कोई बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी। Hmm. और एक पैशन भी जाहिर है, एक फ्रेशीज को एक अलग किस्म का होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो काफी साल अपने एंजॉय किए हैं उस तरह से आफ्टर ग्रेजुएशन। Hmm. तो पहले जो जॉब मैंने स्कूल में पढ़ाया, फिर कुछ इंटर्नशिप्स की, एंड देन आई फिगर आउट के भाई डिजिटल मार्केटिंग में फाइनल मेरा लास्ट जो जॉब थी वो एक्सपोनेंटो में थी, I see. जहाँ मैंने 1.5 इयर्स काम किया है। और सारा कुछ, लेकिन फिर उसी के दौरान मेरी थोड़ी सी इंक्लाइनेशन बड़ी मोटिवेशनल स्पीकिंग की तरफ, कि मुझे Okay. कुछ, क्योंकि एक पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे सिनारियोज मेरे साथ हुए, कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि लोगों को पॉजिटिविटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, Hmm. और सेल्फ अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, सेल्फ वेल बीइंग। इवैल्यूएशन अपना, इसमें भी बिल्कुल, करियर काउंसलिंग भी आ जाती है। और एंड आई थिंक बिल्कुल, यू हैड अ विजन एट दैट टाइम व्हेन आई स्पोक टू यू अबाउट फॉर अ कॉज वाज द नेम ऑफ योर ब्रांड बिल्कुल, पर्टिकुलरली। बिल्कुल, जो मेरा And सोशल जो एंटरप्राइज है, सोशल, और मेरे and you're फ्रेंड still का। working on it, you guys go to different हम्म, libraries, आप बच्चों को पढ़ाते हैं different books, so I think that's हम्म। really good. Do you think that this will create, or it's actually created an impact on those kids and they try to learn different new things? बुक्स वो पढ़ते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, या मजा नहीं आता? गो अहेड एंड टेल अबाउट दैट एस्पेक्ट एज बिल्कुल, वेल। बस मैं यही कह रही हूँ कि पर्पस यही था कि मुझे बीच में फील हुआ कि ठीक है, अपना करियर पाथ तो मैंने ढूंढ लिया है कहीं ना कहीं मार्केटिंग से रिलेटेड, हाँ। लेकिन सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ अवेयरनेस, वेल बीइंग और पॉजिटिविटी इन जनरल पे काम करने की बहुत माशरे में जरूरत है। सो हम्म। मुझे कहीं ना कहीं अपनी 9 to 5 जॉब से वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगी कि इस पे काम करना जरूरी है। हम्म। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई कुड, एट दैट पॉइंट इन टाइम आई कुड अफोर्ड कि मैं अगर अपनी 9 to 5 जॉब छोड़ती, हम्म। रिमोटली काम कर, और साथ में ऐसा कुछ भी अपना लॉन्च करती, तो हम्म। इट, मतलब इट वाज फाइन फॉर मी। So I left my 9 to 5 job and I या। started my blog about positivity, living हम्म। upbeat with Sehrish. या। Or and then I joined my friend, which who already had started for a cause, और मैंने उसको join किया। That and social enterprise was also about positivity and self awareness और skills के ऊपर। तो वो काम शुरू कर दिया, और कुछ ना कुछ सोशल मीडिया मार्केटिंग के फ्रीलांस करते साथ साथ। सो आई माय सी। प्रोफेशन सो यू नेवर would स्टॉप्ड, also, पॉइंट इज यू स्टार्टेड, आपने अपने आप को एंगेज रखा है बेसिकली, के जस्ट बिल्कुल टू। वो भी साथ साथ चलता रहा, और ये चीजें भी शुरू हो गई। तो और इम्पैक्ट विच यू आर बेसिकली आस्किंग, इम्पैक्ट इसका बहुत ज्यादा है। अगर आप शॉर्ट टर्म में देखें तो आपको लगेगा अच्छा यार लोग सुन रहे हैं, भूल जाते हैं, क्या फायदा इन चीजों का। स्टिल आई स्टार्टेड ऑल दिस लाइक ब्लॉगिंग एंड सोशल एंटरप्राइज बैक इन 2017, और हम्म। अब उसको 5 इयर्स हो गए हैं। और अभी तक कुछ लोग
जब मैं उनको बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, तो कुछ लोग यही सवाल पूछते हैं कि इसका क्या फायदा, हम्म। बातों से क्या होता है, और कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए, आजकल तो पैसा कमाने का जमाना है। लेकिन मैं यही कहती हूँ कि बातें ही हैं इंसान की जो बंदे को बना देती हैं या बिगाड़ देती हैं। बिल्कुल। जो बातें वो खुद खुद से करता है, जो बातें लोग उससे करते हैं। तो हम्म। बातें या तो बना देती हैं या तोड़ देती हैं इंसान आई को। स्टिल रिमेम्बर देयर वाज अ तो कोट आप ना बड़ा जो यूज करती थी। लोग, हाँ, एक कुछ वाइल। आप कह रहे हैं? हाँ, आप वर्कशॉप जब करती थी ना, तो यू आर द आपकी ड्राइवर आवाज ऑफ मुझे योर। अली आ नहीं रही, आई थिंक बीच में कॉल आ रही थी जिसकी वजह से कुछ डिस्टरबेंस हो गई है। दैट्स टोटली फाइन। Alright, so I think there was some lag in the internet. Sehrish, go ahead. Let's start तो again. यही मैं आपको बात बता रही थी कि लोग अभी भी पूछते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट है, बातों से क्या होता है, लोगों को गाइड करने से क्या होता है, मोटिवेशनल स्पीकिंग से और इस तरह की चीजों से, सेल्फ अवेयरनेस पे बात करके क्या होगा। इट्स ऑल अबाउट मनी दीज डेज, एंड यू हैव टू वर्क एंड अर्न मनी एंड ऑल दैट। बट मुझे लगता है कि जितना आईक्यू हमारे यहाँ जरूरी है, उतना ईक्यू भी बहुत जरूरी है। Hmm. और इमोशनली स्ट्रांग होना, और आजकल तो हम जैसे देख सकते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज और जो प्रॉब्लम्स और जो सारे लोगों को कंफ्यूजन्स एक आई हुई हैं, जिसको हम एक अवेयरनेस उसके बारे में अलग से क्रिएट हो रही है, दैट यू नीड टू फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ एज वेल, जैसे कि आप फिजिकल हेल्थ पे फोकस करते हो। Hmm. सो बीइंग स्ट्रांग मेंटली, नोइंग योर ओन सेल्फ, नोइंग योर पाथ, एंड बीइंग श्योर अबाउट इट, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। Hmm. और मोटिवेशनल स्पीकिंग या फिर सेल्फ अवेयरनेस पे सेशंस करना, चाहे ये बातें ही होती हैं, लेकिन ये कहीं चाहे देर से, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोगों को इन्फ्लुएंस डेफिनेटली करती हैं। और उनको जरा सा उनका माइंड जो है क्लियर करती हैं, away from all the confusions or anything like that. Yeah. So it's been a great journey. मार्केटिंग पे भी मैं काम, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड भी काम कर रही हूँ साइड पे। और अपनी ब्लॉगिंग और सोशल एंटरप्राइज के थ्रू वी हैव बीन कंडक्टिंग सेशंस जहां हम सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ डिस्कवरी और इन सारी चीजों, वेल बीइंग के बारे में बात करते हैं और अच्छा लोगों सरिश, के। एक क्वेश्चन है आपसे। आई अंडरस्टैंड दैट you're doing a lot on this. मैंने जिस तरह एक्सप्लेन भी किया फॉर अ कॉज के लिए। अब बिल्कुल। मतलब talking about the positive side, we're going to come to that as well. But what do you think is the impact of social media on our youth? And if it's negative, how should we avoid it? ऑब्वियसली हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, दुनिया Definitely. में हर चीज के। Yeah. सो इसी तरह सोशल मीडिया के भी जितने अगर प्रोज हैं, मैं ये नहीं कह सकती, अगर हम उस तरह से बहुत पेसिमिस्टिक और सिनिकल होकर सोचें तो हम ये कहेंगे कि वो बहुत नुकसान है और बच्चों हाँ, बहुत मतलब खराबी पैदा हो। पॉजिटिविटी तो है, वो तो आई नो दैट। आई एम हाँ, टॉकिंग अबाउट कि अगर तो जो उस नेगेटिव तरह से एस्पेक्ट है ऑब्वियसली उसको। पॉजिटिव चीजें भी हैं हाँ, और फायदे भी बहुत ज्यादा हैं कि डिस्टेंसेस इतने से कर दिए हैं, कुछ मतलब कुछ रहा ही नहीं है अब उस ये तरह भी तो से। सोशल मीडिया है ना। आई एम हियर राइट नाउ, यू आर सिटिंग एट योर ओन बिल्कुल। हाउस एंड वी आर कनेक्टेड एंड वी आर ट्राइंग टू you know make sure that we do a session for the बिल्कुल। welfare So of digital marketing yeah. and online shopping and all that, e-commerce and things have become much easier. That's But the at the positive side, but my point is specifically जो लोग misutilize कर रहे हैं, तो how should they overcome that? at the Yeah. same time, it has many, hundreds of cons as well. Yeah. So एक तो सोशल मीडिया का मुझे लगता है सबसे बड़ा, जो मैं एज अ ब्लॉगर देखती हूँ या एज अ मार्केटर देखती हूँ, कि बहुत ज्यादा एक रेस बहुत ज्यादा हम में आ गई है। Hmm. और वी हैव बीन वी हैव बीन पुल्ड टुवर्ड्स दैट रेस, हर कोई बच्चे से बच्चा से लेके बड़े से बड़ा तक ना, क्योंकि इतना कुछ हो रहा होता है। व्हेन यू ओपन, आप कुछ सेकंड्स के लिए फेसबुक, अपना इंस्टाग्राम या कुछ खोलते हैं, तो आपको अपने इर्द गिर्द के लोग इतना कुछ करते हुए नजर आ जाते हैं कि आपके तो यार ये क्या हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और ये सब क्या कर रहे हैं। Yeah. बट वी हैव टू मेक इट क्लियर कि इतना ज्यादा नहीं है, दैट्स नॉट द रियलिटी। जो हम सोशल मीडिया पे दो पिक्चर्स लगा देते हैं या कुछ कर लेते हैं या अपना कुछ एक अचीवमेंट शो, एंटरटेनमेंट शो कर देते हैं, दैट्स नॉट द रियलिटी। सो हमें अपने अपने ब्लेसिंग्स काउंट करनी चाहिए पहले, Mm-hmm. इंस्टेड ऑफ गेटिंग इंस्पायर्ड और गेटिंग इंस्पायर्ड। तो लोग मेरा ख्याल है कम होते हैं, जेलसी ज्यादा हो जाती है, Yeah. एक राइवलरी ज्यादा हो जाती है, एक रेस में हम जब सबसे पहले आ जाते हैं, और इस तरह की बहुत ज्यादा चीजें हो गई हैं। फिर एक और चीज जो मैंने टिपिक पर्टिकुलरली जो यूथ में देखी है, वो मैंने ये देखी है कि
एक अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया, क्योंकि दे हैव सो मेनी आउटलेट्स, हम्म। फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, और कितनी चीजें, शायद मुझे टिकटॉक, इतनी ज्यादा चीजें कि कुछ नया से नया, नया से नया, नया से नया चाहिए भाई, और एक चीज में फोकस नहीं हमारा देखें, खराब एक हो एक गया। बैलेंस्ड लाइफ कैसे मेंटेन करें। आई एम अ गाय हु लाइक्स टू गो अहेड, टेक पिक्चर्स, इट्स फाइन। अब सबका दिल करता है हाँ, मीडिया पे जाने का, बताने का कि जी हम भी हैं, हम भी खा पी रहे हैं, हम भी इंजॉय कर रहे हैं, देयर इज नो बिल्कुल, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। बिकॉज हाँ, सोशल मीडिया बना ही इसलिए है ना, जस्ट टू इंटरेक्ट विद ईच बिल्कुल, अदर एंड लेट पीपल नो दैट ओके, आई मीन आई एम हियर, दिस इज अ गुड प्लेस, यू कैन विजिट इट, जो हमारे अच्छे अच्छे ब्लॉगर्स भी जो काम कर रहे हैं। बट नेगेटिव बिल्कुल, इन्फ्लुएंस में इस सेंस में कह रहा हूँ कि हम लोग शायद इतना ज्यादा उसमें लग गए हैं कि वी डोंट टॉक अबाउट चेंज, वी डोंट टॉक अबाउट इनोवेशन, वी जस्ट फॉलो पीपल व्हाट दे आर डूइंग। मतलब अगर मैंने आज हम्म, कोई ब्लॉगर देखा है तो मैं कहूंगा यार अच्छा मैं भी इस जैसा बन जाऊं। कॉपीइंग इज नॉट अ बैड थिंग, बट बिल्कुल, जब आप बिल्कुल। बिल्कुल ही कॉपी करने लग जाएंगे फिर आप इनोवेटिव माइंडसेट से नहीं सोच सकते। मैं वही बता रही हूँ ना कि मैं ये फील करती हूँ कि बहुत ज्यादा एक रेस हो गई है कि सब ये कर रहे हैं, मैंने भी ये लाजमी करना है। हाँ। एंड एक बहुत ज्यादा एक कुछ नया से नया से नया, और एक क्लिक्स और लाइक्स के लिए आप कुछ भी कर लो, कुछ ऐसा करो कि बस सारे आपके हाँ, फैन बन अगर जाएं। अगर जिस तरह फॉर एग्जांपल वी आर डूइंग, आप फॉर अ कॉज करती हैं, आई मीन अगर आप ये देखने लग जाएं कि मुझे मिलियन व्यूज मिले हैं कि नहीं, तो फिर आप कहेंगे नहीं यार मैं तो फिर मैं करना नहीं बंद कर दे। करूंगी, एग्जैक्टली। अगर मैं कमर्शियलिज्म पे आ जाऊंगी, और अगर मैं पर्टिकुलरली इस पे आ जाऊंगी कि मुझे ज्यादा लाइक्स और ज्यादा हाँ। ट्रैफिक कहाँ से मिलेगी, तो हाँ, फिर जो थोड़े बहुत अच्छे काम जहाँ हो रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि खत्म हो सारे तो रेस जाएंगे। में लग जाएंगे कि एग्जैक्टली। और क्या हम कर सकते हैं, ज्यादा क्या कर सकते हैं, ज्यादा लाइक्स कैसे आ सकते हैं, मैं इससे ज्यादा कैसे ऊंचा जा सकता हूँ। So that's the तो message that we would like to give as well, कि don't think about these things. I mean, हाँ, डोंट गेट getting, इनटू द रेस, एवरीबॉडी। हाँ, सब सब कुछ कर रहे हैं, सब खा पी रहे हैं, सब खा रहे हैं, कोई नहीं रह जाएगा खाने अगर पीने से। आपका काम हाईलाइट नहीं हो रहा तो फिक्र ना करें, घबराएं ना, उसको कैरी ऑन बिल्कुल। करें। अपनी और कुछ, सोसाइटी से रिलेटेड लोगों को ढूंढे, मिल जाएंगे आपको, इट्स नॉट अबाउट बिल्कुल, और कुछ दैट। लाइक्स और कुछ ट्रैफिक के पीछे, कुछ व्यूज के पीछे कुछ एब्सर्ड किस्म का कुछ ऑब्नॉक्शियस करने की कोई जरूरत नहीं जो है टिकटॉक पे कि। हमने रिसेंटली कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं पाकिस्तान में भी, जो कि मीडिया में भी फिर बिल्कुल, आपको एक नेगेटिव एक एक इमेज देते हैं, मतलब बिल्कुल, इवन क्योंकि दो जब आप के एक रेस ऐसी चीज है ना, रेस एक आप कह लो कि एक आगे फेम बढ़ने है, की आग बेसिकली है इट्स उसको फेम। अक्सर। आई वुड बिल्कुल, एक फेम कैटेगराइज की, कि आप फेम फेमस होना की, या चाहते हैं। आगे बढ़ने की, कि मैं आगे निकल जाऊं, एक जो ये मैं अक्सर यूज करती हूँ कि आग होती है हर एक के अंदर, कि भाई मैं इससे भी आगे। तो ये जो रेस और ये जो फेम का एक बहुत ज्यादा है, और कुछ नया करूं, कुछ ऐसा करूं कि एक दिन में मुझे व्यूज मिल जाएं, तो आई थिंक वी शुड उसमें इससे भी कोई हमें थोड़ा बुराई नहीं है, मैं ग्रेस। आपको बताऊं, अब अगर आपने करना है ना, लेट मी गिव यू एन एडवाइस। उसकी ये हाँ, एडवाइस है कि फिर आप कुछ एक इनोवेटिव चीज करें जो कि अभी तक लोगों ने बिल्कुल, नहीं की जिसका है। जब पॉजिटिव इम्पैक्ट हो इसका कुछ। पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव सेंस में ही, कि मतलब फिर आप इनोवेटिव माइंडसेट से सोचे ना। लेट्स फॉर एग्जांपल हम लोग काम कर रहे हैं, या कोई भी किसी आप एक अच्छा ब्लॉगर बनना चाहते हैं, आप वो प्लेसेस हिट करें जो शायद कभी किसी ने नहीं की। नास डेली, आई बिल्कुल, डोंट नो इफ यू नो अबाउट दैट गाय, वो जो इसका एक पेज है NAS डेली का। that's where I'm coming to कि टुवर्ड्स कि कुछ कोई लोग कर रहे हैं उनसे आगे बढ़ने की रेस, और कुछ ऐसा करना कि बस उसने ये किया तो मैं भी उससे आगे ऐसा निकल जाऊं। इसके बजाय थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, Things कि take कुछ time, इनोवेशन। things take time, and try to, and always know, even if you're not getting what you want in your life, it does not mean that you didn't get anything out of it. It could be your own बिल्कुल, personal और वो learning. बहुत से अच्छे कामों को उस तरह से व्यूज ट्रैफिक नहीं मिलती, लेकिन अगर आप एक बंदे की भी लाइफ एक्चुअली में कर रहे हैं, इम्पैक्ट या हाँ जी। इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, दैट्स अ विन विन सिचुएशन। आपका हो गया काम जो आपने करना था। अगर आप इतने व्यूज ले रहे हैं और आपका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट ही नहीं है, हम्म। इंस्टेड यू आर मतलब क्रिएटिंग अ फस आउट ऑफ इट, Yeah, तो फिर उसका फायदा नहीं है मेरी नजर में। I अगर agree. आप अच्छा काम कर रहे हैं और आपके ब्लॉग पे या आपके एंटरप्राइज पे भाई मिलियन लाइक्स नहीं है, या इवन मैं कहती हूँ 10,000 लाइक्स भी नहीं है, बट यू आर हाँ। इन्फ्लुएंसिंग 1 or 2 पर्सन, दैट्स हाँ, मोर देन कोई इनफ। आपको रीच आउट कर रहा है कि नहीं यार मुझे गाइड कर दें, दैट मींस बिल्कुल। दैट आपका मिशन अकॉम्प्लिश हो गया। हाँ, ये है कि थोड़ा सा आप करते रहेंगे तो यू नेवर नो कहाँ से कब एंड आपको। इस सोशल मीडिया ने सबको ये कर दिया है कि एवरीबडी नीड्स टू बी फेमस। नो, फेम इज नॉट एवरीबडीज गेम। बिल्कुल ऐसे ही है।
बिल्कुल ट्रस्ट ऐसे। मी, हर एक का फेमस होना, दुनिया में अगर सारे फेम के पीछे भागना शुरू हो जाएंगे तो जो असल काम है करने वाले वो कौन वो करेगा? कौन यू नो, करेगा? आप आपके नहीं भी आप रेस में शामिल, आप अगर कुछ ऐसा सारे नहीं ही, है। अभी मैं कल, बिकॉज आई एम इन इस्लामाबाद, अभी वो मैरियट में मैं स्टे कर रहा था, तो जी वो मैंने भाई, माय यंगर ब्रदर वाज विद मी, तो हमने इतने सारे ब्लॉगर्स देखे वो खड़े होके कुछ 3 लाइन में जो है ना, हर बंदा अपना अपना ब्लॉग एडिट कर रहा है। आई लाइक्ड इट इज वेल कि यार चलो एक एक्टिविटी तो हो रही है ना, नजर तो आ रहा है कि चलो हाँ। फेमस होने के लिए सही, बट पीपल आर डूइंग समथिंग, सो दिस इज पॉजिटिव एस्पेक्ट एज वेल, दैट ओके दे ट्राइंग टू हम्म। कम अप विद। अब देखें जब आप ब्लॉग बनाएंगे तो कुछ क्रिएटिव बोलेंगे तो सही, आप जस्ट टू ग्रास्प द बिल्कुल अटेंशन ऑफ द ऑडियंस, व्हिच इज फाइन, बट ऑल्सो क्रिएट अ बैलेंस जिसमें आप सिर्फ वही नहीं कर रहे कि आप सारा दिन बस अपनी ब्यूटी कॉन्शियस, स्पेशली फॉर गर्ल्स, बस वो कहेंगी कि जी हमने सारा दिन मेकअप टिप्स ही देनी है, उसके अलावा कुछ बिल्कुल जिंदगी में हेल्प आउट करने की भी आप ब्लॉग जब आप हिट बिल्कुल। हो जाते हैं। देर आर देखिए, जहाँ हम इसके इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहे हैं डिस्कस, देर आर इन्फ्लुएंसर्स एंड ब्लॉगर्स जो बहुत अच्छा इम्पैक्ट लोगों को क्रिएट कर रहे हैं। वो दिन रात ब्लॉगिंग कर रहे हैं, हाँ, स्टोरीज बना रहे हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर शेयरिंग देयर ओन जर्नी एंड दे आर इन्फ्लुएंसिंग अ लॉट ऑफ पीपल, दे आर, विच इज गुड स्टफ। और विच वो इज उनका रियली गुड, कंटेंट दिखता है कि दिखता है। वो कुछ वैल्यूएबल है, कुछ मीनिंगफुल है। और जिनका कंटेंट वैल्यूएबल नहीं है वो भी दिखता है। I understand that. Serish, thank you so much for your time. I think it was a very good discussion. I would just like to summarize it. आपके पास, I mean, if you've got a minute to explain, for example, you were a politician of Pakistan, जिसको ये right दे दिया जाता है कि जी come and work on career counseling, build entrepreneurs. We just want some change in the next coming 2-3 years जो आपका tenure है. What would be हम्म। two main strategies जो आप immediately, because आपके पास autonomy है, हम बातें भी बहुत से करते हैं, मेरे पास ये हो तो मैं ये करूंगा वो, so what would you do exactly for this society जिसे आपको लगता है कि इम्पैक्ट क्रिएट होगा? पर्टिकुलरली फॉर करियर काउंसलिंग या वैसे ऑन देखिए, यूथ? करियर काउंसलिंग होगी तो एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे ना, जब आपको अपना इंटरेस्ट ही नहीं पता होगा तो फिर आप कैसे एंटरप्रेन्योर बनेंगे, तो इट्स बोथ बेसिकली। या नहीं, आपका सवाल ये है कि यूथ को पॉजिटिव इम्पैक्ट करने के लिए मैं एज अ प्राइम मिनिस्टर व्हाट वुड आई डू, या राइट? पॉजिटिविटी, एंटरप्रेन्योरशिप वुड बी द राइट वर्ड, कि हाउ टू बिल्ड मोर एंटरप्रेन्योर्स ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छा। अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो हमारे पास ना। मुझे ये लगता है जो जिसपे मैं काम भी करती रही हूँ, इवन आपके साथ यूथ एलुमनाई एसोसिएशन के साथ हमने स्कूल्स में जाके यही किया है जी। कि करियर काउंसलिंग की है, बच्चों को फोकस दिया, बच्चों को डिफरेंट पाथ्स बताए हैं कि या ये भी आप कर सकते हैं। सिर्फ ये डॉक्टर इंजीनियर इज नॉट द ओनली थिंग इन द वर्ल्ड, या देयर आर thousands of other careers which you can opt. So मुझे यही लगता है कि फर्स्टली अपार्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, लाइक ओ लेवल्स की क्लासेस से ही, अपार्ट फ्रॉम द 8, आई थिंक 8 ही होते हैं जो एसेंशियल सब्जेक्ट्स होते हैं, हम्म उनके अलावा मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा एक, आई वुड डिजाइन, आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन इट, थोड़ा स्लो पेस पे है, कि एक सेल्फ डिस्कवरी का कोर्स एक मुझे लगता है होना चाहिए इन ओ लेवल्स और ए लेवल्स, जिसमें हम अदर देन जनरल सब्जेक्ट्स हम कुछ सेल्फ डिस्कवरी की, सेल्फ अवेयरनेस की बात करें और अपने पैशंस डिस्कवर करने की बात करें। बच्चों के अंदर एक ऐसी अवेकनिंग लाएं जिसमें हम्म वो रियलाइज करें कि व्हाट डू आई एंजॉय द मोस्ट और हु एम आई इन एंड रियलिटी, व्हाट्स द नेक्स्ट, और मेरे अंदर का इंसान क्या है? एक्चुअली है कौन और वो चाहता क्या है जिंदगी में और उसका मकसद क्या है। सो सेल्फ डिस्कवरी यही है ना, कि अपना ढूंढना अपने आप को और अपना मकसद, अपना गोल ढूंढना। मुझे लगता है कि ऐसा एक कोर्स होना चाहिए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जो बच्चों को एक अवेकनिंग इस चीज की लाए और इस चीज पे उनको विच मेक्स देम थिंक, बिकॉज Just हमारे Serish, यहाँ एक। I understand that. We just have 1 minute left because after that ओके I have a session. Uh, ओके। first of all, सो thank you so much. फर्स्ट तो Yeah, ये हो गया। ठीक है। सेकंड बस हम्म। 2 सेकंड में बता देंगे कि क्या है, उसके बाद we'll बस continue. यही है, मुझे है कि एक तो हम कोर्स डिजाइन करें, बच्चों को ये अवेयरनेस दें, और दूसरा है कि बड़े लेवल पर भी फिर हम सेमिनार्स और इस तरह की चीजें करें जहाँ Seminars पे conduct कराएं बेसिकली, जहाँ बिल्कुल पे awareness create हो. Thank अवेयरनेस you की so much Sehrish for joining today's session. I hope we'll continue this session later as well because काफी बातें हैं जो रह गई जाए। हैं करने को. And thank you so बिल्कुल। much for taking out time. And guys, you can subscribe us on Youth Alumni Association on It's YouTube and been an on honor Facebook. coming here, and inshallah, we plan to do a lot of more sessions on different topics. Inshallah. Thank you for inviting me, Ali. No problem. Take care of yourself, ji. Bye bye. Allah Hafiz. Allah Hafiz.